یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 8 جنوری 2023 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعے کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: ساکرامنٹ۔ سنہری متن: یوحنا۔ جس کے پاس میرے حکم ہیں اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا۔ جوابی مطالعہ: فلپیوں۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا ہو جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ بس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرمانبرداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کے کام کرتے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ درسی واز بائبل میں سے میکا۔ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند 1000 مینڈھوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس سے زیادہ کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ متی۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ متی۔ وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا: مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ متی۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کریں۔
ان 12 کو यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ न जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल न होना, बल्कि इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कूड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, मुफ्त तुमने पाया मुफ्त देना, और घर में दाखिल होते वक्त उससे दुआ खैर देना। और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उससे पहुँचे, और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। और अगर कोई तुमको कबूल न करे और तुम्हारी बातें ना सुने तो उस घर या उस शहर से बाहर निकलते वक्त अपने पाँव की गर्द झाड़ देना। मत्ती। और ईद फितर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फिसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था उन्होंने वैसा ही किया और फिसा तैयार किया। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनसे कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहतेरों के गुनाहों की मुआफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाहत में नया ना पीऊँ। मत्ती। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उस जगह जो गुलगुता की जगह कहलाती है पहुंचकर उन्होंने उसे मसलूब किया। मरकस। हफ्ता के पहले रोज जब वो जी उठा तो पहले मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 बदरूहें निकाली थीं, दिखाई दिया। फिर वो उन 11 को भी जब खाना खाने बैठे थे दिखाई दिया, और उसने उनकी बेइत्कादी और सख्त दिली पर उनको मलामत की, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनका यकीन न किया था। और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। लूका। फिर उसने उनका जहन खोला ताकि किताब मुक़द्दस को समझें। फिर वो उन्हें बैतनिय्याह के सामने तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें बरकत दी। जब वो उन्हें बरकत दे रहा था तो ऐसा हुआ कि उनसे जुदा हो गया और आसमान पर उठाया गया, और वो उसको सजदा करके बड़ी खुशी से यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। अब मैं मेरी बेकरेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। अपने उस्ताद के हुक्मों पर अमल करना और उसके नमूने की पैरवी करना हम पर उसका मुनासिब कर्ज है, और जो कुछ उसने किया है उसकी शुक्रगुजारी का वाहिद मौजू सबूत है। बावफा और दिली शुक्रगुजारी को जाहिर करने के लिए बैरूनी इबादत खुद में ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि उसने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। आप ये सीखेंगे कि क्रिश्चियन साइंस में पहला फ़र्ज़ खुदा की फरमाबरदारी करना, एक अक़ल रखना और दूसरों के साथ अपनी मानद मोहब्बत रखना है। ये कौन है जो हमारी फरमाबरदारी का मुतालबा करता है? वही कलाम की ज़ुबान में जो आसमानी लश्कर और अहले ज़ुबान के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे तू क्या करता है।
लामहदूद मोहब्बत को पेश करने की कोई शक्ल, ना ही कोई जिस्मानी मजमुआ मौजू है। खुदा से मुतल्लिक एक महदूद और मादी फहम रस्मियत और तंग नज़री की जानब ले जाता है। ये मसीहत की रूह को ठंडा कर देता है। यसू ने इजहार की बदौलत ज़िंदगी का तरीक़ाकार सिखाया ताकि हम ये समझ सकें कि कैसे इलाही असूल बीमार को शिफा देता, गलती को बाहर निकालता और मौत पर फतहमंद होता है। किसी दूसरे शख्स की निस्बत जिसका असल कम रूहानी हो, यसू ने खुदा की मिसाल को बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया। खुदा के साथ उसकी फरमाबरदारी से उसने दीगर सभी लोगों की निस्बत हस्ती के असूल को ज़्यादा रूहानी ज़ाहिर किया। इसी तरह उसकी इस नसीहत की ताकत है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। यसू ने एक ही वक्त में 70 लोगों को भेजा, लेकिन सिर्फ 12 ही मतलूबा तारीखी रिकॉर्ड बना सके। रवायत उसके सर पर 2 या 300 शागिर्दों का सेहरा बांधती है जिनका कोई नामो निशान नहीं मिला। बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर बरगजीदा थोड़े हैं। वो फजल से दूर हो गए क्योंकि उन्होंने हकीकत में अपने मालिक की हिदायत को नहीं समझा था। आसमान पर जाने का वाहिद रास्ता हमांगी है और मसीह इलाही साइंस में हमें ये रास्ता दिखाता है। इसका मतलब खुदा, अच्छाई और उसके अक्स के अलावा किसी और हकीकत को ना जानना, जिंदगी के किसी और ज़मीर को ना जानना है और नाम नेहाद दर्द और खुशी के एहसासात से बरतर होना है। इलाही साइंस के हिदायत सिमत वो राह दिखाते हैं जिस पर हमारे मालिक ने कदम रखे, और महज कारोबार के लिए नहीं बल्कि ये मसीहियों से उस सबूत का मुतालबा करते हैं जो उसने दिखाया। हम दुनिया से रूहानी लाइल्मी छुपा सकते हैं, मगर हम लाइल्मी या रियाकारी की बदौलत होने वाली रूहानी अच्छाई के इजहार और साइंस को छुपाने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मसीही फ़राइज़ की फहरिस्त में सबसे पहला फ़र्ज़ जो उसने अपने पैरोकारों को सिखाया वो सच्चाई और मोहब्बत की शफाया क़ुव्वत है। उसने बेजान रस्मों को कोई अहमियत नहीं दी। ये ज़िंदा मसीह अमली सच्चाई ही है जो मसीह को उन सब के लिए क़यामत और ज़िंदगी बनाता है जो कामों में उसकी पैरवी करते हैं। उसके बेशकीमत अहकामात की फरमाबरदारी करते हुए जितना हम ये समझ सकें उतना उसके इजहार की पैरवी करते हुए हम उसके प्याले में से पीते हैं, उसकी रोटी में शरीक होते हैं और उसकी पाकीज़गी में बपतिस्मा पाते हैं, और बिलाखिर हम जो मौत पर फतहमंद होता है उस इलाही असूल के मुकम्मल फ़हम में उसके साथ बैठेंगे, आराम करेंगे। कदीम रोम में एक सिपाही के लिए अपने जनरल के साथ वफादारी का अहद बांधना ज़रूरी होता था। इस अहद के लिए लातीनी लफ्ज़ साक्रामेंटम था और हमारा अंग्रेज़ी लफ्ज़ साक्रामेंट इसी से अख्ज़ किया गया है। यहूदियों में यह कदीम रवायत थी कि दावत का मालिक हर किसी को मै का प्याला दिया करता था, मगर यूखरस्त किसी रोमी सिपाही के हलफ की यादगारी नहीं था और ना ही मै थी, जो इज्तमाई मौक़ों में और यहूदी रसूम में इस्तेमाल होती थी, यानी हमारे खुदावंद का प्याला थी। प्याला उसके तल्ख तजर्बे को ज़ाहिर करता है, यानी वो प्याला जिसके लिए उसने दुआ चाही कि वो उससे टल जाए, हालांकि वो इलाही फरमान की पाक सपुर्दगी में झुक गया था। जब वो खा रहे थे तो यसू ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। अगर साक्रामेंट को रोटी और मै के इस्तेमाल में महदूद कर दिया जाए तो रूहानी तौर पर हकीकी फ़हम खो जाता है। शागिर्दों ने खा लिया था, ताहम यसू ने दुआ की और उन्हें रोटी दी। लफ्ज़ी मानों में ये एक बेवकूफ़ी ही होगी, मगर इसके रूहानी मफ़हूम में ये फितरी और नहायत खूबसूरत बात थी। उस प्याले की कड़वाहट के सबब जो उसने पिया, यसू इजहार में ऊपर उठाया गया। इंसानी कानून ने उसे रद्द किया, मगर वो इलाही साइंस को ज़ाहिर कर रहा था। उसके दुश्मनों की हद से ज़्यादा बर्बरियत के बावजूद वो मादे और फ़ानियत के इनहराफ में रूहानी कानून के तहत काम कर रहा था, और उसी रूहानी कानून ने उसे कायम रखा। इलाही को हर मुकाम पर इंसान पर फातेह होना चाहिए। वो साइंस जिसकी तालीम यसू ने दी और उस पर ज़िंदगी गुजारी, उससे ज़िंदगी, मवाद और जहानत से मुतल्लिक़
तमाम तार मादी अकायद पर और ऐसे अकायद से फ़रोग़ पाने वाली कसीर गलतियों पर फ़तहमंद होना चाहिए। मोहब्बत को नफ़रत पर हमेशा फ़तहमंद होना चाहिए। इससे क़ब्ल के कांटों को ताज बनाने के लिए चुना जाए और रूह की बरतरी को ज़ाहिर किया जाए। सच्चाई और ज़िंदगी को गलती और मौत पर फ़तह की मोहर सब्त करनी चाहिए। दुआए खार कहती है, एक अच्छे और वफ़ादार खादम, तूने बहुत अच्छा किया। हमारा बपतिस्मा सारी गलती से हमारी पाकीज़गी है। हमारा यूखरिस्त एक खुदा के साथ रूहानी शराकत है। हमारी रोटी जो आसमान से उतरती है सच्चाई है। हमारा प्याला सलीब है। हमारी मैं यानी वो मैं जो हमारे मालिक ने पी और अपने पैरों को भी इसका हुक्म दिया, मोहब्बत का इल्हाम है। हमारी तरक्की का तयन करने के लिए हमें ये सीखना चाहिए कि हमारी हमदर्दियाँ क्या मुकाम रखती हैं और बतौर खुदा हम किसे तस्लीम करते और किसके हुक्म की पैरवी करते हैं। अगर इलाही मोहब्बत हमारे लिए करीब तर, अजीज तर और ज़्यादा हकीकी बन रही है तो फिर मादा रूह के सपुर्द हो रहा है। जिन चीज़ों का हम ताक़ुब करते हैं और जिस रूह को हम आश्कार करते हैं वो हमारे नुक्ता नज़र को ज़ाहिर करती है और हमें दिखाती है कि हम क्या फ़तह कर रहे हैं। ये मुमकिन है, हाँ, ये हर बच्चे, मर्द और औरत की ज़िम्मेदारी और इस्तेहक़ाक़ है कि वो ज़िंदगी और सच्चाई, सेहत और पाकीज़गी के इजहार के वसीला मालिक के नमूने की किसी हद तक पैरवी करें। मसीही लोग उसके पैरोकार होने का दावा तो करते हैं, मगर क्या वो उसकी पैरवी उसी तरह करते हैं जैसे उसने हुक्म दिया है? इन नागुज़ीर अहकामात को सुनें। बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने अंजील की मुनादी करो, बीमार को शिफा दो। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत और ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफ़ियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने क़ायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।